Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, fit and fine and enjoying your studies. So it's time for GK class. Today we will start the new chapter, that is World 2. See students, in this chapter काफ़ी famous pictures आपको दिखाई जा रही हैं. So with the help of the help box हम ये chapter, हम ये exercise complete करेंगे. So let's come to the exercise. Identify these well known landmarks using with the help box. Okay, so the first picture किसकी है? The first picture is from Petola Palace and picture number second is Lincoln Memories and picture number third is Forbidden City and picture number 4 is Palace of Versailles. Let's move to the next page students. Picture number 5 is Abu Simbel and picture number 6 is Capitol Building. Picture number 7 is, see here, picture number 7 is, that is Petronas Tower. Picture number 8 is of Washington Monument and picture number 9 is, that is Windsor Castle. See students here, know with Derek. The Abu Simbel temples are two large rock temples that are the part of the Nubian monument in southern Egypt. यानी ये काफ़ी famous temples हैं. Mostly they are found in the area of southern Egypt areas. So let's move to the another chapter students, that is chapter number 22 Wildlife Organization. ये जो चैप्टर है ये आपके SST में भी है, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और SST में भी ये चैप्टर है. So let's start the chapter. The natural world is a place of untold beauty and fascinating wonder, one that all of us at some level are intimately connected to. Yet it is not without its danger as well as a fact that in many ways enhances its charm. Mother Nature is ultimately unpredictable and fiercely uncompromising. Though she provides us with everything from our basic necessity to create inspiring, she must always be treated with respect and never ever be taken lightly. स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं नेचर जो है ना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और बहुत मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इतनी अच्छी और वंडरिंग चीज़ें हैं हमारे नेचर में, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट से लेकर मोस्टली हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो नेचर से. तो बेसिकली हमें हमारी मदर अर्थ, ठीक है, इसमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारे फ्लोरा फौना, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, इनके बारे में भी हमें काफ़ी सोचना चाहिए, इसके प्रोटेक्शन के बारे में भी. ठीक है, ऑब्वियसली मदर अर्थ को हम एज अ मदर और वे बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं. तो जब हमारी मदर अर्थ, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर जब हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम भी उसका ध्यान रखें, हम भी उसकी प्रोटेक्टिविटी का ध्यान रखें. So let us learn more about some important wildlife organization. So students, here the first topic is Project Tiger. In 1973, the government of India launched the Project Tiger, which aims to maintain a sizable tiger population in India. Initially, the project started with 9 tiger reserves but has grown to 50 as 2016. It is spread out in 18 of a tiger range state. The project covers around 2.08% of geographical area of our country. The total number of the tigers estimated in India according to the 2014 census is 2226. Project Tiger, like टाइगर्स भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट है ना वो शुरू किया टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो द लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज WWF. WWF रेसलिंग वाला WWF नहीं है, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. इट्स एम एट स्टॉपिंग the degradation of plants, natural environment and building a future in which humans lives in a harmony with nature. The organization plans to do this by conserving the population and wasteful consumption. That is, Chi Chai, a giant panda at the London Zoo, was selected
as the logo of WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका जो लोगो है ना वो एक पांडा को बनाया गया है, ठीक है, द पांडा which is found in London Zoo. It stands as a symbol for the conservation movement as whole. When WWF was established in 1961, it was known as the World Wildlife Fund. The organization grew over the next couple of decades and it changed its name to World Wide Fund for Nature. Okay? So let's move to the another topic, that is IUNC. IUNC created in 1948. The full form of IUNC is International Union for Conservation of Nature, has evolved into the world's largest and most distinct environmental network. It comprises both government and civil society organizations, which add up to about 1,300 members organization and a network of more than 10,000 scientists. The union's mission encourages the assist societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. The IUNC's headquarters are in ना इम्पॉर्टेंट है इनको कंजर्व करना, बिकॉज वंस दे एग्जॉस्टेड इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ तक कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, वंस वी एग्जॉस्ट दैम, वंस वी यूज़ दैम, तो इनको बनने में भी काफ़ी साल लगते हैं। इतने साल लगते हैं कि लाइक क्रोर्स बिलियंस की कैटेगरी में ईयर्स लग जाते हैं। तो वो बहुत, जो इनके बनने का टाइम पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सोचना होगा कि हम इन रिसोर्सेज को आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेनेबल वे में यूज़ करें, यानी कि कंजर्व करें, ठीक है, और आने वाली जनरेशन को भी इसकी इम्पोर्टेंस समझाएं, इन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस। सो लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, a global partnership of conserving organizations, aims at conserving birds, their habitats and global biodiversity. There are 9 global programs in the bird life, each responding to species conservation issues. Various individual regional programs are also functional. See, ये सारे programs क्यों चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे टाइगर प्रोजेक्ट हुआ, बर्ड सेंचुरी प्रोग्राम्स भी हुए। क्यों? क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन, इस इंडस्ट्रियल मॉडर्न पीरियड में हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट और हमारे नेचर को बहुत हार्म किया है, ठीक है। काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सो दैट्स वाई बर्ड्स के अकॉर्डिंग, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कम्स टू PETA, that is PETA, People for Ethical Treatment of Animals, the largest animal rights organization in the world. Virginia. It was founded in 1980. The main aim of the organization is to establish and define animal rights. Humans की तरह animal rights को भी define किया गया है इस PETA के according. PETA believes that animals should not be exploited for food, clothing, experiment और एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि ऑब्वियसली आप देखते हैं साइंटिफिक अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो हम पहले एनिमल्स, रैबिट्स, ठीक है, बैट्स, इन पर करेंगे। इनकी स्किन को हम लोग यूज़ करते हैं, इनके टीथ्स को हम यूज़ करते हैं। तो सोचो हम ह्यूमंस, हम क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। हम उसको कंजर्व, प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोगों ने इनको यूज़ तो किया है, ठीक है, बट हम इस हद तक इनको यूज़ कर रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रहा है। और नेचर को हार्म करना, इनडायरेक्टली हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम खुद को हार्म कर रहे हैं। तो इवन लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स भी एक तरह के जीव है, इनको भी राइट है अर्थ पे रहने का। हम अपने सेल्फ एस्टीम के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। जो इनका घर है वहाँ हम लोग अपना घर बना रहे हैं। हाँ, अगर कैसा लगे अगर एक टाइगर ह्यूमन सोसाइटी में आ जाए तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ जाता है, राइट ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सेल्फ एस्टीम के लिए मिनरल रिसोर्सेज,
जंगलों को, ठीक है, फॉरेस्ट को, इन सब को साफ़ कर रहे हैं, इनकी जगह को हम ले रहे हैं, तो दैट्स वाई इनको मार रहे हैं अपने पर्पस के लिए, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो पैटा के अकॉर्डिंग यानी एनिमल्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम अननेसेसरी एनिमल्स को मारेंगे नहीं, अब उनके स्किन को, उनके टीथ्स को, उनके हेयर्स को यूज़ नहीं करेंगे अननेसेसरी, इनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन एडुकेट्स पॉलिसी मेकर्स एंड द पब्लिक अबाउट एनिमल अब्यूज़ एंड प्रमोट्स काइंड ट्रीटमेंट। दया यानी काइंडनेस की फीलिंग रखनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, किसके प्रति, एनिमल्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। हमारे पेट एनिमल्स देख लो, लाइक डॉग्स, ठीक है, बहुत लॉयल रहते हैं, तो हमें हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए चीज़ों को, बट ऐसा नहीं कि हम किसी सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर दें। अगर ह्यूमंस को कोई एक्सप्लॉइट करे तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमंस अपने सेल्फ एस्टीम के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करें, एनिमल्स को भी एक्सप्लॉइट कर दे, लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट को भी डैमेज करे। तो कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना, जोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग ये बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट और बहुत ब्यूटीफुल है। हमें इसके नेचुरल ब्यूटी, इसको बैलेंस करके रखना चाहिए। सेम एज़ हम जितना हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जितना हमारी मदर अर्थ की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उतना ही हमें उसको वापस देने के बारे में भी सोचना चाहिए। हम एनिमल्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं उनकी चीज़ों को, तो वो एक हद तक होना चाहिए कि इट शुड बी बैलेंस्ड, ऐसा नहीं कि ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल, द चैप्टर इज़ completed नाउ। So I'm giving you some of the exercises related to the chapter, so you all have to do these exercises in your copy. Okay, so it's enough for today. Rest of the chapters we will continue in next video. So till then, enjoy your day and good day.